Okay, so guys, we have come live today to discuss one very important tool of actuarial science that you guys require for almost all numerical subjects, that is formulas and tables booklet. So a lot of students ask me, those who have just started their course, that sir, how to use these tables booklet, how to use these formulas and tables booklet. So I thought that to come live and discuss all about what all is included in formulas in these tables booklet and how to use these efficiently. So guys, in next few seconds I will share my screen with you all. So in that we will be discussing what all is there in formulas and tables booklet and how it is going to help us throughout our actuarial journey. Okay, so let me share my screen with you all. Okay, so guys, this is the content of the formulas part of this tables booklet. So guys, this tables booklet is divided into two parts. One part will be having all the formulas and the second part will be having all the tables. So first of all, we will be looking at what all formulas is given in this table, and then I will proceed to what all tables is given and how we will be using throughout our actuarial syllabus. So guys, before I start, let me just tell you in which exams you will be using these tables. So these tables will be helpful in CS1, CS2, CM1 and somewhat in CM2. So these four numerical exams of CT series will be going to helped by this tables booklet. So after using this tables booklet you will be seeing that कि कुछ भी हमें ऐसे मगअप करने की जरूरत नहीं है. Already all formulas are given in these table booklet. I know nowadays IFO exams are being online and open book, so वैसे भी हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बट गाइस उसमें भी हमें बुक्स में से ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, टेबल्स में से ढूंढना बहुत इजी होता है. तो जैसे पहले ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे हम सब कुछ टेबल्स में से रेफर करते थे. व्हेन वी गो टू सिट इन ऑफलाइन एग्जाम्स द सोसाइटी विल प्रोवाइड अस द टेबल्स बुकलेट, बट नाउ एग्जाम्स बीइंग ऑनलाइन ओपन बुक, आई एम टॉकिंग अबाउट आईएफओ. आईआई में अभी भी हमें यही टेबल्स बुकलेट यूज करना होगा. आईआई के एग्जाम्स अभी भी ओपन बुक नहीं है, तो अगेन टेबल्स की यूटिलिटी अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी. ठीक है, जो बच्चे बुक्स रेफर कर रहे हैं आईएफओ एग्जाम्स के लिए दे कैन डू दैट, बट ट्रस्ट मी, tables booklet will be there for you every time and it is very easy. It is having a lot of utility. Okay, let us proceed further. So guys, let us quickly have a look on the index page. So what all is there? Mathematical methods, statistical distributions, statistical methods, compound interest, survival models, annuity assurances, stochastic processes, time series, economic models, financial derivatives. So guys, some of these topics are subject specific. We are not going to understand in this session that इनको यूज कैसे करना है. मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या गिवन है और किस किस सब्जेक्ट्स में कहाँ कहाँ क्या क्या रेफर कर सकते हो. और जहां मुझे लगेगा कि बेसिक एग्जाम्स लाइक CS1 CM1 में कुछ कुछ आपको चीजें समझ आनी चाहिए, आई विल make you go through it as well. Okay, let us proceed. Let me just start scrolling it. So guys, first section is mathematical methods. So what is given in it? Exponential function, natural log function, binomial expansion, some basic functions of calculus like Taylor series of two variables, Taylor series of one variable. Now see, integration by parts, simple formula that you have already studied in class 12th. It is also mentioned here. How to solve double integrals, differentiating and integral. This formula, what is its name? Leibniz rule. It is already given in your tables booklet. So next, Newton-Raphson formula, integrating factor. What कहाँ यूज होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का? while solving differential equations. And last, second order difference equations. So second order difference equations means जो algebraic equations में हमें हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए. तो गाइस ऑलमोस्ट इसमें सारी चीजें हमने क्लास 12th की एनसीईआरटी में देखी होती है. एनसीईआरटी में नहीं तो अगर मैं आर डी शर्मा की बात करूं, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी मैथमेटिकल मेथड्स गिवन है हम ऑलरेडी अपने क्लास 12th में कवर कर चुके हैं. तो उसका रिवीजन या फिर उसकी समरी हमें इन 3 पेजेस में दी हुई है. तो ये आपको थ्रू आउट योर CS1, CM2, CS2 एंड CS1 इन 4 सब्जेक्ट्स में कहीं पे भी यूज आ सकते हैं. दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक. इन नॉर्मल मैथमेटिकल मेथड्स है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है जो आपको किसी भी सब्जेक्ट में यूज करने को आ सकते हैं. So you can refer from here. So you can write page 2 to 4 will consist of all the mathematical formulas that we have already studied somewhere in class 12. Okay, let me proceed. Next section is statistical
methods or statistical formulas. Now here all the statistical formulas from page 5 to page 18, you can note it down. From page 5 to page 18, all the statistical formulas are given. Now see, gamma function, we normally use this in our CS1 and CS2. What is gamma function? So we always write as gamma x will be equals to x minus 1 factorial. Again, no need to learn in this session anything. मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या गिवन है. तो इसलिए गामा फंक्शन अगर हमें कहीं भी आए तो इसका यूज कहाँ होने वाला है, CS1 CS2 में. तो आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि गामा फंक्शन का फॉर्मूला हमें याद रखने की जरूरत नहीं है. इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द टेबल्स बुकलेट. अगेन आई एम नॉट सेइंग यू याद मत रखो, याद रखोगे इट विल बी गोइंग टू हेल्प यू, बट अगर नहीं भी याद यू कैन रेफर इट फ्रॉम हियर. Next, base formula. Base formula again used in your CS1 and CS2, normal base formula that we have studied in class 12th. Okay, after that guys, very important, statistical distributions from section 2. So in this section, all the distributions that you are going to study in CS1, CS2, and somewhat you will be applying some distributions in CM1, CM2 as well, but this section is most important from CS1 and CS2 point of view. क्या क्या given है इसमें? अब ऑल CS1 CS2 स्टूडेंट्स, आपको पता होगा हम कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस देखते हैं, जैसे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. तो उसमें मैं आपको बोलता हूँ कि पीडीएफ याद रखोगे तो अच्छा है किसी किसी डिस्ट्रीब्यूशन का. जैसे मैं अपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन याद रहे तो बढ़िया. क्या होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन? e raised to minus lambda, lambda raised to power x upon x factorial for x greater than 0. अब आप बोलोगे जरूरी है याद रखना. नो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल द फॉर्मुलाज आर गिवन इन योर टेबल्स बुकलेट. बट हाँ, अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये आपको स्टेप स्टेप पे यूज होते रहेंगे. तो इसलिए मैं बोलता हूँ इसको अगर आप याद रख लोगे तो बेटर है, नहीं भी याद रखोगे तो ऑलरेडी गिवन इन योर टेबल्स बुकलेट. तो इस सेक्शन में, सेक्शन 2 में हमें क्या क्या मिलने वाला है गाइस? ऑल द डिस्ट्रीब्यूशंस, उनका पीडीएफ. व्हाट इज पीडीएफ? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. उनका सीडीएफ, दैट मींस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. उनका मीन, वेरिएंस, skewness and MGF. All these topics are given under this section 2 for all the distributions. जितने भी हमारे distributions हम पढ़ेंगे CS1 CS2 में, उन सब का PDF, CDF, mean, variance, skewness, MGF इस सेक्शन के अंदर गिवन है. चाहे जो मर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, गुड डिस्ट्रीब्यूशन, वेबल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सारे डिस्क्रीट, सारे कंटिन्यूस, सारे डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इस सेक्शन के अंडर कवर्ड है. तो कभी भी आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन रेफर करना हो, सो यू कैन रेफर इट फ्रॉम गाइस सी पेज 6 ऑफ दिस टेबल बुकलेट. पेज 6 से लेके आगे तक हमारे ये सारे फॉर्मुलाज गिवन है पेज 18 तक. सो लेट मी स्क्रॉल इट फॉर यू. लाइक सी, first binomial distribution, then Bernoulli distribution, Poisson distribution, negative binomial distribution, then uniform distribution. अब continuous के केस आ गए. देखो PDF, CDF, MGF, moments, that means expectation of x, variance of x, all these things are given. So कभी भी आपको इसको मगअप करने की जरूरत नहीं है. हाँ, कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं बोलता हूँ, जैसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट हर जगह हमारा यूज आता है, तो अगर इसका याद रखोगे तो बेटर है. नहीं भी याद रहा, सो देयर इज अ टेबल बुकलेट वेयर यू कैन रेफर इट फ्रॉम. सो एक्चुअल इज नॉट अबाउट गाइस मगिंग अप द थिंग्स. अगर मगिंग अप होता तो आपको टेबल्स अलाउ ना करते, वो सिर्फ आपको चाह रहे हैं कि आप चीजों को अप्लाई करो. दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दिस टेबल्स बुकलेट एंड उन्होंने इसको अलाउ कर रखा है एग्जाम में यूज करने के. ओके, सो गाइस पेज 18 तक हमारा यही है. इस फॉर्मूलाज बुकलेट में सारे डिस्ट्रीब्यूशंस, उनका मीन, वेरिएंस, पीडीएफ, सीडीएफ एंड मोमेंट्स. सी टिल पेज 18. अब देखो यहाँ पे आगे हमारा कुछ कुछ फॉर्मुलाज भी गिवन है, लाइक कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन का. earlier it used to be part of CT3 but now it has been shifted to CS2. so CS2 students can link it. ये सारे फॉर्मुलाज हमें गिवन है मोमेंट जेटिंग फंक्शन के कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में. क्लियर? सो पेज 18 तक हमारा यही है गाइस. अब ये हमारा ट्रंकेटेड मोमेंट्स निकालने का फॉर्मूला है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. वेयर वी यूज इट, यू कैन नोट इट डाउन. वी विल यूज इट इन CS2 रीइंश्योरेंस यूनिट, दैट इज 15, 18, 19, 20. तो CS2 में जब हम रीइंश्योरेंस यूनिट पढ़ेंगे वहां पे हमें इसका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है. सो यू कैन रेफर इट फ्रॉम देयर. चलो गाइस, उसके बाद आगे चलते हैं. इसके बाद गाइस हमारा क्या आता है? इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, स्टैटिस्टिकल
methods. Statistical methods from page 22 to page 30. इसके अंदर क्या गिवन है गाइस हमारा, इसके अंदर अगेन बहुत सारे फॉर्मूलाज गिवन है जो हमें यूज करने होंगे CS1 एंड CS2 में। तो CS1 CS2 में कुछ कुछ चैप्टर स्पेसिफिक चीजें आएंगी जहां पे हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारी नोटेशंस याद रखनी होंगी। अगेन नहीं भी याद, सो यू कैन रेफर इट फ्रॉम हियर। जैसे मैं सिंपल फॉर्मूला की बात करूं, सैंपल का मीन, सैंपल का वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूलाज ऑलरेडी गिवन है। देन टी डिस्ट्रीब्यूशन, काइस्को डिस्ट्रीब्यूशन को क्या पैरामीटर फॉलो करता है, अगेन दोज हु आर जस्ट स्टडीइंग CS1 दे कैन लिंक इट। CS1 चैप्टर 1 में हमने इसकी बात करी थी। एफ डिस्ट्रीब्यूशन को क्या वेरिएबल्स फॉलो करेंगे। उसके बाद CRLB, this you are going to study again in CS1 and CS2 both under MLE chapter, likelihood ratio test, again ये हम CS1 CS2 दोनों में पढ़ेंगे। GLM के अंदर भी देखेंगे इसको, हम CS2 में भी देखेंगे जब हम अपना कॉक्स मॉडल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, आफ्टर दैट लीनियर रिग्रेशन मॉडल, अगेन पार्ट ऑफ CS1। तो मैंने आपको यही बताया, पूरा जो पेज 22 से पेज 30 की यूनिट है अगेन स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स उसमें हमें गिवन है। तो ये हमें किसमें हेल्प होने वाले हैं गाइस, अपने CS1 और CS2 सब्जेक्ट में। रिग्रेशन के प्रॉपर फॉर्मूला सी हमारा चैप्टर 11 आएगा CS1 में रिग्रेशन का, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे गाइस, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन इन योर टेबल्स बुकलेट। अगेन अगर आप मगअप कर सकते हो, याद रख सकते हो, तो ऑलवेज इट विल बी बेटर। व्हाई? बिकॉज एग्जाम में हमारे पास टाइम की हमेशा कमी रहने वाली है। तो अगर आपको फॉर्मूलाज याद है, यू विल सेव योर 5-10 सेकंड्स मोर फॉर टर्निंग आउट द पेजेस ऑफ टेबल्स बुकलेट। अगर नहीं भी याद, 5-10 सेकंड्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, you can open your tables booklet and refer it from there as well. Okay, I am proceeding now. So guys देखो कुछ कुछ फॉर्मूला गिवन है यहाँ पे। अगेन मेन रिस्पॉन्स रिग्रेशन चैप्टर में यूज आ गए, सारे हमारे रिग्रेशन के फॉर्मूलाज गिवन है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पहले बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता था CT3 में, अब इसका थोड़ा सा पोर्शन है हमारा CS1 चैप्टर 11 में, तो उसके प्रॉपर फॉर्मूलाज यहाँ पे गिवन है। GLM देखो, GLM हमारा एक प्रॉपर चैप्टर है CS1 का, चैप्टर 12, उसके सारे फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे गिवन है। बेजियन मेथड्स अगेन CS1 का पार्ट है, चैप्टर 13, 14, 15 के अंदर हम पूरी बेजियन वाली स्टार्ट्स पढ़ते हैं, उसके सारे फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे गिवन है। EBCT मॉडल 1 के सारे फॉर्मूलाज, लेट्स सी दिस। देन नेक्स्ट इज EBCT 2, तो पूरा चैप्टर 15 के जो भी फॉर्मूलाज है, जो हमें तो उसके लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऑलरेडी इसके सारे फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे गिवन है। सो नो नीड टू मग अप एनी फॉर्मूला, ऑल फॉर्मूलाज आर गिवन इन योर टेबल्स बुकलेट। और वैसे ही जो बच्चे IFOA से दे रहे हैं, अगेन बुक तो हम रेफर कर ही सकते हैं, तो वैसे भी मगअप करने की कोई जरूरत नहीं है। II के लिए टेबल्स बुकलेट यू कैन यूज इन योर एग्जाम्स। सो यहाँ तक तो बात रही गाइस हमारी पेज 30 तक की। अब मैं आता हूँ अपने पेज 31 ऑफ टेबल्स में, जहाँ पे हमें गिवन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला? ये क्या है? ये इंक्रीजिंग एन्युटी इन अरियर्स, जो हम अपने CM1 चैप्टर 9 में बात करते हैं, और एक्यूमुलेशन फैक्टर का फॉर्मूला। अगेन इसमें तो वैसे भी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, या फिर इसमें पेज को टर्न अप करने की जरूरत है। दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पेज। अगर आप CM1 पढ़ रहे हो तो आपको ये फॉर्मूलाज वैसे भी होल हार्टेडली याद हो ही जाते हैं। ओके, लेट मी प्रोसीड। अगेन नेक्स्ट इज सर्वाइवल मॉडल। नाउ दिस इज समथिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यू कैन राइट इट हियर। इट विल बी यूज्ड इन योर CS2 सब्जेक्ट, CS2 चैप्टर 6, जहां पे हम सर्वाइवल मॉडल्स की बात करने वाले हैं। सो हियर इट इज गिवन एज सर्वाइवल प्रोबेबिलिटीज, गॉम्पर्ट्स मॉडल, मेकहम मॉडल, ये सब फॉर्मूलाज हमें गिवन है। नेक्स्ट एम्पेरिकल एस्टिमेशन, ये किसके फॉर्मूलाज है गाइस, याद है? CS2 स्टूडेंट स्पेसिफिकली। CS2 में हम यहाँ कहाँ पढ़ते हैं? अपने कैप्लन मेयर वाले चैप्टर में, जहां पे हम कैप्लन मेयर और नेल्सन एलन के मोर्टेलिटी एस्टिमेट्स निकालते हैं। तो ये उनके वेरिएंस का फॉर्मूला, अगेन लर्न करने की जरूरत नहीं है। दिस होल यूनिट, ये जो पूरा सेक्शन 5 है हमारा CS2 को ही बिलोंग करने वाला है। क्लियर? अगेन मोर्टेलिटी असम्पशंस, दिस इज अगेन टॉपिक फॉर CS2। नेक्स्ट इज जनरल मार्कोव मॉडल, अगेन CS2 के चैप्टर 4-5 में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस जो पढ़ते हैं कोलमोग्रोव की, उनके फॉर्मूलाज अगेन टेबल्स बुकलेट में हमें गिवन है। ग्रेजुएशन टेस्ट चैप्टर 10 ऑफ CS2, serial correlation test, variance adjustment factor, all these consist from CS2. So again CS2 students के लिए बहुत important pages है ये। Next multiple decrement tables, earlier it used to be part of your CM1,
अब इसका कोई इतना कोई क्वेश्चन नहीं आता, इतना कोई यूज नहीं, बट स्टिल CM1 स्टूडेंट्स दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. ओके, next, annuities and assurances. CM1 students, listen it very carefully. This is very important from CM1 students point of view. So क्या गिवन है गाइज यहाँ पे हमें, ये सारे फॉर्मूलाज हमारे अब यहाँ से जो होंगे वो CT5 पार्ट ऑफ CM1 है. CT5 पार्ट ऑफ CM1 में किसको बोलते हैं, चैप्टर 15 टू चैप्टर 28. उसके अंदर जो भी हम एनुइटीज के फॉर्मूला पढ़ेंगे, अभी एश्योरेंसेस के फॉर्मूला पढ़ेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे सारे गिवन है. सारे रैंडम वेरिएबल वाले फॉर्मूला भी गिवन है कि AX एश्योरेंस फैक्टर, होल लाइफ एश्योरेंस फैक्टर फॉर पर्सन एज्ड X, वो डिराइव कैसे हुआ, दैट इज डिराइव्ड एज एक्सपेक्टेशन ऑफ V KX plus 1 where KX is what, a random variable, curtailed future lifetime of aged X. तो मैं ज्यादा इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, जब हम CM1 पढ़ेंगे इसको हम वैसे ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट ऑल फॉर्मूलाज आर गिवन हियर. तो पूरा ये हमारा CT5 पार्ट देखो, प्रीमियम्स रिजर्व जो हम चैप्टर 2021 में पढ़ने वाले हैं अंडर CM1, ये सारे फॉर्मूलाज गाइस. नेक्स्ट सेक्शन, स्टोकास्टिक प्रोसेसेस. स्टोकास्टिक प्रोसेसेस ये कहां पे आएगा, अगेन ये किसका पार्ट है, ये हमारा है CS2 का पार्ट. पूरा पूरा मतलब पूरा सेक्शन 7.1. अब यहां से गाइस जो बात होनी शुरू होती है 7.2 से, 7.2 से ये किसका टॉपिक है, ब्राउनियन मोशन एंड रिलेटेड प्रोसेस. तो मैंने आपको टेबल्स की स्टार्टिंग में बताया था 4 सब्जेक्ट्स हैं, CS1 CS2 CM1 CM2. तो अभी तक हमने जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करी है वो सिर्फ CS1 CS2 और CM1 की करी है गाइस. यहाँ से हमारा CM2 का भी कंटेंट शुरू हो जाता है. तो ये सारे फॉर्मूलाज गिवन है, मार्टिंगेल्स एंड फॉर स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन एंड सो ऑन, all these will be from your CM2. So you can write section 7.2 is from CM2. Next, Monte Carlo methods guys. यहाँ से हम कुछ कुछ सिमुलेशन के मेथड पढ़ रहे हैं, बॉक्स मुलर फॉर्मूला एंड पोलर मेथड. अगेन ये आपका CM2 में भी यूज होता है, CS2 में भी यूज होता है, तो दोनों के लिए आप इसको मार्क करके रख सकते हो. टाइम सीरीज ऑल अबाउट CS2. अलग से हमारे टाइम सीरीज के 2 चैप्टर है CS2 में, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14. All the formulas from there is written under this section 8. See all the formulas. Next, economic models. Right, this whole section is from CM2. Utility theory, capital asset pricing model, CAPM. ये हम CP1 में भी पढ़ते हैं, बट मोस्टली यहाँ पे हम CM2 स्पेसिफिक फॉर्मुलाज देखेंगे. अब आप बोलोगे CP2 का तो मैंने नाम लिया नहीं लगा, CP2 और CP1 में इतनी कोई थ्योरी न्यूमेरिकल नहीं आता. सॉरी, CP2 नहीं, CP1 में भी पढ़ते हैं हम CAPM, लेकिन इतना कोई इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता. और आता भी है तो उसके जो भी फॉर्मुलाज होंगे हम ऑलरेडी उसको याद रखेंगे. तो एज सच CP1 CP2 के कुछ भी फॉर्मुलाज यहाँ पे नहीं गिवन. ओके, सो अगेन अलग से चैप्टर है हमारा प्रोसेसिंग मॉडल का, दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड हियर. देन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, अगेन टॉपिक फ्रॉम CM2 ओनली. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐसे वैल्यू करना है, बाइनॉमियल प्राइसिंग मॉडल को ऐसे वैल्यू करना है, स्टोकास्टिक डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, ब्लैक-स्कोल्स फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डिराइविंग शेयर प्राइस, दैट यू स्टडी अंडर CS2. अगेन सारे फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे गिवन है, तो कुछ भी हमें याद रखने की जरूरत नहीं है. पुट कॉल पैरिटी रिलेशनशिप, अगेन इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ योर CM2 सब्जेक्ट. तो गाइस यहां तक हमारी सारी बात हुई पेज 47 तक, फॉर्मूलाज पार्ट ऑफ योर टेबल्स बुकलेट. तो गाइस इसके 2 नाम है पूरी बुकलेट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, या तो हम उसको बोलेंगे फॉर्मूलाज इन टेबल्स, या फिर मैं जेन्युइनली इसको बोलता हूँ टेबल्स बुकलेट. तो टेबल्स बुकलेट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, हाफ पार्ट में सारे फॉर्मूलाज हैं, हाफ पार्ट में सारे टेबल्स हैं. तो अभी जो हमने सारा डिस्कस करा दैट इज ऑल अबाउट formulas. In the next part of the video, we will be discussing all about tables. तो tables कैसे हमें help करेगा अपने different actuarial subjects में, अब हम आने वाले part में वो देखते हैं.